Hello everyone, welcome to revision series. Hope you are revising well for the exams. Revision अच्छा चल रहा है? Today we will revise chapter 10, that is financial market of your business studies of class 12, right? So let's quickly start revising financial market. Financial market क्या है? Market क्या होता है? पहले बताओ. Market is the place where the buyers and sellers meet and they exchange their goods, right? One has some good to sell, other has the money to buy the goods. So they both meet, buyer and sellers meet. बायर को जो खरीदना होता है वो खरीदता है, उसके बदले में पैसे देता है, सेलर को पैसे चाहिए होते हैं, उसको पैसे मिल जाते हैं, बायर को सामान चाहिए होता है, उसको सामान मिल जाता है. So that is how the mechanism of the market goes on, right? Similar is the mechanism for financial market. Financial market is the market for financial securities, right? So जिस market में financial securities खरीदी बेची जाएं, that is called financial market. यहाँ पर participant कौन होता है? Buyer कौन, seller कौन? यहाँ पर होते हैं savers और investors, right? Some people who have spare money, they do not know what to do with that money. And there are some people who are in need of money. They have some investment opportunities, some productive activity to do, but they do not have money. So both these people meet in one market, right? एक जगह मिलते हैं, जिसके पास surplus money है, वो उस दूसरे person को दे देता है जिसको money की requirement है to invest into some productive activity, and that is what a financial market is. So let us read the definition. Financial market is a link between the savers and borrowers. I told you there are two parties in the financial market. One is the saver. Saver वो है जो पैसा बचा रहा है, जिसके पास अपनी earnings में से पैसा बचाया है, and he does not have any investment opportunity. उसको कोई productive काम में invest करने की कोई scope नहीं है. दूसरी पार्टी वो है जिसको पैसा चाहिए, borrower. तो वो borrow करता है saver से. तो financial market इन दोनों people को मिलाते हैं, right? It makes the savers and borrowers meet at a place where borrower can borrow the money from those who have the surplus money, right? तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? It transfers money from surplus unit to deficit unit. Surplus unit कौन सी? जिनके पास spare money है, save किया हुआ है जिन्होंने, तो उनके पास surplus है. Deficit unit कौन सी? Borrowers, जिनको पैसा चाहिए, ठीक है? So financial market acts as a link between these two parties, right? See, this is how the financial system is. We have savers on one side, we have borrowers on the other side. Savers कौन होते हैं? Households generally, or some businesses who have saved money from their business activity. They need some opportunity to invest the money. उनको चाहिए कि उनका पैसा कहीं invest हो जाए, but they cannot do it on their own. So there is another party on the other hand, which is borrowers. Like government को borrow करना होता है किसी इन्वेस्ट करने के लिए, या बिजनेस इन्वेस्ट करने के लिए बोरो करती है पैसा, और दे बोथ मीट विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज इन द सेंटर. बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज या फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, ये सब इंटरमीडियरीज हैं. ये सब प्लेटफॉर्म है जहां पर बोरोवर्स और सेवर्स मीट करते हैं. तो फाइनेंशियल सिस्टम के अलाउ क्या करता है? ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम सेवर टू बोरोवर. सेवर से बोरोवर को मनी ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, राइट? तो फाइनेंशियल मार्केट इज क्लियर. Now, what are the functions of financial market? Financial market के functions क्या है? One is it's channelizing savings into investments. अभी हमने पढ़ा कि borrowers से पैसा ट्रांसफर होता है, savers से पैसा ट्रांसफर होता है borrowers के पास, right? तो क्या हो रहा है? जो savings हैं, जो idle money पड़ी सबके घरों में सेव करी भी रखी है, which is not getting invested in anywhere, तो वो savings invest हो रही है through the borrower. So it is channelizing savings into some investment opportunity. Next is it facilitates price discovery. Price discovery में financial market facilitate करता है. Price discovery किसकी? Of the financial securities, right? कि market में किस security का क्या rate है, क्या price है, किस price पे we should borrow with at what price we should sell or we should invest. All this is the basic function of the financial market. It provides liquidity to financial assets. ये बहुत important function है. Liquidity means ability to convert into cash, right? तो आपके पास कुछ financial assets हैं. अब ये financial assets क्या हो सकते हैं?
जैसे कोई शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कोई बॉन्ड्स हैं, राइट, कोई कमर्शियल पेपर्स है या कोई टी बिल्स हैं. देयर सो मेनी फाइनेंशियल एसेट्स अवेलेबल इन द मार्केट. नाउ यू वांट टू कन्वर्ट दीज एसेट्स इनटू कैश. अब आपको कैश चाहिए, अब आपको कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? यू कैन नॉट गो बैक टू द बोरोवर कि लो अपने आप हम अपनी सिक्योरिटी वापस लो और मेरे को पैसा दे दो. So what will you do? You will approach this financial market and convert your financial assets into cash. Next is reduces cost of transactions. Cost of transactions gets reduced with the help of financial market because it is very easily accessible. अब आपके brokers, because of the development in the financial market, the cost of transaction means converting the cash into the security or back to the cash, is reduced to a considerable amount. Yes, functions are clear. Now there's a classification of financial market. See, financial market can be classified into capital market and money market. Capital market कौन सा होता है? Capital market is the market for long term securities, right? And money market is the market for short term securities, जिसकी ऐसे instruments जिनकी जो टाइम लिमिट है दैट इज ओनली 1 year, वो 1 year में मेच्योर हो जाएंगे. और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, 5 years, 10 years, 20 years and things like that. Okay, so capital market can further be classified into primary market and secondary market. Primary market कौन सा? जिसमें shares और new securities are issued for the very first time directly by the company. और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज दे जस्ट चेंज हैंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट? वी विल डील विद ऑल दीज टर्म्स इन द डिटेल इन द फर्दर स्लाइड. नाउ वी फर्स्ट स्टार्ट विद द मनी मार्केट. मनी मार्केट आई टोल्ड यू इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. मनी मार्केट में वो सिक्योरिटीज डील होती है, ट्रेड होती है, जो कि जिनकी मेच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 year, right? So money market is a market for short-term securities whose maturity period is less than 1 year and it is a source of working capital for the firm. अब 1 साल से कम के लिए पैसा बिजनेस को क्यों चाहिएगा? किसी बड़े प्रपोजल में तो इन्वेस्ट करने के लिए नहीं चाहिए. फर्म को 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए. ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ा है, शॉर्ट टर्म नीड्स हैं वो पूरी करनी है, कोई करंट लाइबिलिटी है, कोई ऑब्लिगेशन है शॉर्ट टर्म, उसको पूरा करना है. तो इमीडिएटली कुछ टाइम के लिए जब कंपनीज को पैसा चाहिए होता है तो दे गो फॉर मनी मार्केट, राइट? सो व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट? वन इज ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, commercial bills and commercial papers. So we will discuss in detail all 5 of them in the next slide. Now see, the first instrument of money market is T-bill or treasury bill. They are the safest and risk-free, most or least risky, or risk-free securities which is issued by RBI on behalf of government. ठीक है, इसको आरबीआई इशू करती है. गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट इशू करती है टी बिल्स, और बिकॉज ये गवर्नमेंट इशू करती है तो ये बहुत सेफ है, राइट? सो इनकी मेच्योरिटी पीरियड होता है 15 days to 1 year एंड दे फुलफिल द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और लीस्ट रिस्की है, राइट? ट्रेजरी बिल्स आर जनरली issued in the denomination of 25,000. अगर आपके पास 25,000 से कम रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप ट्रेजरी बिल्स को नहीं ले सकते, क्योंकि मिनिमम 25,000 का एक ट्रेजरी बिल होता है. इज दैट क्लियर? और ट्रेजरी बिल्स आर आल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको. दे आर इशूड एट अ लेसर प्राइस देन द फेस वैल्यू, और जब ये रिडीम होते हैं, इनकी मेच्योरिटी पीरियड हो जाता है, तो आपको फुल रेट मिलता है. तो जो ये डिफरेंस है, that is the return for the savers, right? Now next instrument is call money. Call money is such kind of a instrument which is specifically for interbank transactions. तो ये कौन इशू करता है? कमर्शियल बैंक्स इशू करती हैं, और इनका मेच्योरिटी पीरियड होता है 1 day to 15 days. सी कॉल मनी कैसे वर्क करती है? समटाइम्स कोई कमर्शियल बैंक है, एक ब्रांच है जिसको इसके पास बाय द एंड ऑफ द डे इट इज शॉर्ट ऑफ कैश, ठीक है? तो फिर वो क्या करती है, दूसरी ब्रांचेस से 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए मनी बोरो करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कॉल मनी. कि आपने एकदम कॉल किया
ब्रांच, दूसरी ब्रांच ने आपको ट्रांसफर कर दिया, so at the end of the day you have some amount, minimum amount that you should maintain with the bank. अब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं ना, CRR, LRR, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो ये कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने में हेल्प करती है। कैश रिजर्व रेशियो, मिनिमम कैश दैट एवरी बैंक शुड मेंटेन एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो अब सपोज बाय द एंड बैंक को रियलाइज हुआ कि आपके पास सीआरआर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, योर रिक्वायरमेंट वाज लेट्स से 1 करोड़, आपके पास 75 लाख ही है, so then this bank will ask for 25 lakhs from the other bank. तो बाय द एंड उसके पास 1 करोड़ रुपए हो गए, जो उसको मिनिमम उसकी सीआरआर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अगले दिन वो वापस कर देंगे एंड देन दे विल गो अहेड। सो दिस इज व्हाई कॉल मनी की जो डेट होती है दैट इज ओनली फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज एंड इट इज ओनली इन इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। कॉल मनी कमर्शियल बैंक दूसरे बैंक से, किसी पब्लिक से या किसी और इंस्टीट्यूशन से नहीं ले सकते, राइट। Third is certificate of deposits. Certificate of deposits are issued by commercial banks only. They are basically या किसी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, द मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 year, और ये भी बैंक्स की शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करते हैं। कोई ऐसा टाइम जब आ रहा होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत है, बोरोइंग बहुत हो रही है बैंक से, और बैंक के पास डिपॉजिट्स कम आ रहे हैं, तो फिर बैंक क्या करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है लोगों को या बड़े बिजनेस फर्म्स को, और उनके पैसे से फिर अपनी आगे की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। So this is called CDs, या certificate of deposit. So next is commercial papers. Commercial papers are issued by large and credit-worthy companies. ये इनकी short-term working capital requirements को, flotation cost को पूरा करती है. And time maturity is 15 days to 1 year. जब फर्म के पास कोई वर्किंग कैपिटल की नीड्स हैं, शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए थोड़े टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, या फर्म को शेयर्स इशू करने, उसके लिए जो उसके शेयर्स इशू करने के पहले जो कॉस्ट आती है विच इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, उसके लिए पैसा नहीं है, तो फिर फर्म्स कमर्शियल पेपर्स इशू करती हैं, ठीक है। लास्ट इज कमर्शियल बिल्स. कमर्शियल बिल्स आर नथिंग बट योर ट्रेड बिल्स, जो हमने क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज करे थे ना, ये वही है। तो कमर्शियल बिल्स, आपके पास बिल्स हैं दूसरी पार्टी के, आपको पैसा चाहिए, यू कैन गेट इट डिस्काउंटेड, यू कैन एंडोर्स इट, यू कैन ट्रांसफर इट टू सम अदर पार्टी एंड गेट द मनी फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, right? So they are also issued by business firms. So they are these 5 are the main money market instruments which are there in your syllabus, और ये बहुत important है, इसीलिए मैंने इनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, right? Fine. Now next is capital market. Capital market क्या है? Capital market is the market for medium term and long term securities, जैसे shares, debentures, bonds, ठीक है। तो capital market is market for medium term and short term securities. अब देखो, कैपिटल मार्केट में शेयर्स इशू होते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इशू होते हैं, और खरीदे और बेचे जाते हैं। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियल मार्केट, और वी कैन से कैपिटल मार्केट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज प्राइमरी मार्केट एंड अनदर वन इज सेकेंडरी मार्केट. तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर फर्म पहली बार नई सिक्योरिटीज इशू करती है, कोई नए शेयर्स, कोई नए डिबेंचर्स इशू करती है डायरेक्टली टू द पब्लिक, वो हो गया प्राइमरी मार्केट. जब अब ये शेयर्स बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो अब सपोज इन्वेस्टर्स को पैसा चाहिए जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, आई एम अ शेयर होल्डर, आई नीड मनी आफ्टर 5 years. अब इसकी मेच्योरिटी पीरियड तो आई नहीं है, तो व्हाट कैन आई डू, आई कैन गो टू द सेकेंडरी मार्केट एंड सेल इट टू सम अदर पर्सन, ठीक है, किसी और पर्सन को दे दूंगी जिसके पास सरप्लस मनी होगी, एंड आई विल गेट माई मनी फ्रॉम द अदर पर्सन. तो यहाँ पर क्या होता है, विद इन द इन्वेस्टर्स ओनली सिक्योरिटीज चेंज हैंड्स, कंपनी का इसमें फिर रोल नहीं होता, कंपनी के लिस्ट में आपकी जगह दूसरे पर्सन का नाम आ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी मार्केट, जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स जो होते हैं या ओल्ड सिक्योरिटीज जो होती हैं, दे आर जस्ट सोल्ड एंड परचेज, क्लियर, नॉट बाय द कंपनी, बिटवीन द इन्वेस्टर्स ओनली. कंपनी डायरेक्टली इशू कहाँ करती है, प्राइमरी मार्केट में. सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इशू नहीं करती. इज दैट क्लियर? नाउ primary market is a market which deals with new securities being issued for the first time, and that is why it is also called new issue market, and it contributes to capital formation. अब ये बहुत important है कि primary market में जब shares issue होते हैं या securities issue होती हैं, तो कंपनी के पास कैपिटल आता है. जब सेकेंडरी मार्केट में मैंने शेयर्स बेच दिए आपको और आपने मेरे से खरीद लिए, तो कंपनी के पास कोई कैपिटल बिल्ड नहीं होता.
ठीक है, कंपनी की मार्केट वैल्यू, शेयर्स की मार्केट वैल्यू में गो डाउन और मे गेट गो अप, बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता. तो कैपिटल फॉर्मेशन इज ओनली थ्रू प्राइमरी मार्केट. नाउ मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. द फर्स्ट इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. ये सबसे कॉमन है कि कंपनी को जब नए शेयर्स या नई सिक्योरिटीज इशू करनी है तो कंपनी प्रोस्पेक्टस फाइल करती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, आरओसी के पास, और फिर ये प्रोस्पेक्टस फिर जनरल पब्लिक को इन्विटेशन की तरह जाता है. It is like an invitation to the public which gives the details of the type of the security issued and it invites the applications from the public. Public से applications invite करते हैं, public से पैसा मांगती है, and that is called offer through prospectus. Next is offer for sale. Offer for sale में क्या होता है? Companies decide not to go to the public directly, but indirectly. राइट, पब्लिक को ही शेयर्स इशू होते हैं, लेकिन कंपनी डायरेक्टली अपने आप नहीं करती है. कंपनी क्या करती है, कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या इंटरमीडियरी को हायर करती है. इट कैन बी अ ब्रोकर और इट कैन बी अ मर्चेंट बैंकर और इट कैन बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो इसमें डील करता है. फिर उनको सारे शेयर्स इशू कर देती है, बेच देती है, और फिर वो जो इंटरमीडियरी होता है फिर वो जाके इन सेकेंड स्टेप पब्लिक में शेयर्स इशू करता है एट अ हायर प्राइस. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल. अब इससे कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी इज जस्ट एबल टू सेव द हैसल एंड टाइम एंड एफर्ट्स इन इशूइंग द शेयर्स, बिकॉज इशू ऑफ शेयर्स इज अ लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस. तो कंपनी इतना सब नहीं करना चाहती है, तो कंपनीज क्या करती है, इंटरमीडियरी को हायर करती है कि तुम मेरे से सारे शेयर्स खरीद लो, और फिर इंटरमीडियरी आगे किसी भी रेट में शेयर्स इशू करे, पर जाते वो फिर भी पब्लिक को ही है. शेयर्स इन एनी केस गोज टू द पब्लिक, राइट. Next is private placement. Private placement is when the shares or the securities of the company is issued not to the general public but to some selected private players. अब इसमें भी यही होता है कि पहले एक इंटरमीडियरी को हायर करती है फर्म और उसको सारे शेयर्स इशू करती है या सारी सिक्योरिटीज इशू करती है. फिर वो इंटरमीडियरी प्राइवेटली कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को या कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू करते हैं. तो इस केस में पब्लिक के पास शेयर्स नहीं जाते, पब्लिक को पता ही नहीं चलता कि इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स मार्केट में सब्सक्रिप्शन के लिए आए थे. ठीक है, अगेन इसमें भी फर्म को यही फायदा होता है कि हैसल से बचती है, एफर्ट से बचती है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता. फर्म ने तो इकट्ठे शेयर्स इशू कर दिए इंटरमीडियरी को और इकट्ठे पैसा आ गया, फिर इंटरमीडियरी ने आगे कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया, नॉट टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज. Next is rights issue. Rights issue is basically the preemptive right of the existing shareholders. जब फर्म कोई नए कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू करती है ऑफ द सेम कैटेगरी जो ऑलरेडी इशूड है. ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे थे, अब कंपनी को और कैपिटल चाहिए, कंपनी वांट्स टू इशू अनदर 10,000 शेयर्स. So company already has shareholders of 10,000 shares. तो उन जो पुराने शेयर होल्डर्स का राइट होता है नए शेयर्स पर भी. तो फर्म विल फर्स्ट गिव द राइट और विल ऑफर द इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. इफ दे टेक अप द शेयर्स, न्यू शेयर्स, देन इट इज फाइन. इफ दे डू नॉट टेक अप दीज शेयर्स, देन द रिमेनिंग शेयर्स गो टू द पब्लिक. इसीलिए हम इसको राइट्स इशू कहते हैं कि राइट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का नए शेयर्स पर भी ऑफ द सेम कैटेगरी, नॉट ऑफ अगर डिफरेंट कैटेगरी है, सपोज पहले इक्विटी थे अब प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो रहे हैं तब नहीं, लेकिन सेम कैटेगरी के अगर शेयर्स हैं तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं दे शुड बी फर्स्ट ऑफर्ड द शेयर्स व्हिच इज टू बी इशूड. इफ दे रिजेक्टेड देन इट शुड गो टू द नेक्स्ट शेयर्स टू द जनरल पब्लिक. क्लियर? नेक्स्ट इज EIPO. EIPOs are electronic initial public offer. E for electronic, IPO, initial public offers. When the shares are issued or new securities are issued by the firms through the electronic media. यानी कि over the electronic media आप इंटरनेट पे अगर आप शेयर्स इशू करते हो for the first time and that is your first offer, IPO, initial public offer. फर्म ने इसके पहले कभी भी कोई तरह की सिक्योरिटी इशू नहीं करी है, तो जब फर्म का IPO आता है और वो इलेक्ट्रॉनिकली आए, then it is called EIPO. So these were the major methods of flotation or of flotation of securities in the primary market. ठीक है, इन हर केस में फर्म के पास पैसा आएगा
directly firm is involved. Firm is the seller or the issuer of the securities in this particular market. अब नाउ कम्स द सेकेंडरी मार्केट. अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, फर्म ने एक बार शेयर्स इशू कर दिए, मैंने फर्म के शेयर्स ले लिए, अब आई वांट टू सेल दी शेयर्स, तो फर्म तो वापस नहीं लेगी, आई विल गो टू द सेकेंडरी मार्केट और वहां पर कोई और बायर होगा जिसको शेयर्स चाहिए होंगे, तो मैं उसको सेल कर दूंगी और वो मुझे मनी दे देगा, राइट. सो दिस इज व्हाट इज अ सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट इज कॉमनली नोन एज स्टॉक एक्सचेंज. हम कहते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज, तो वो जो है वो स्टॉक एक्सचेंज इज नथिंग बट द ब्रांड नेम ऑफ सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, इट इज अ मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग और ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, एंड स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म विच फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. तो इसीलिए कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स यू लिक्विडिटी. Whenever you want to convert your assets or shares or any kind of security into cash, you can easily go to the stock exchange and sell them and get your money back. Fine. Functions क्या है स्टॉक एक्सचेंज के? It acts as a economic barometer. Economic barometer, barometer is something which tells you the present state of something, right? तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, आपको इकोनॉमी का सिचुएशन कैसा है वो पता चलता है. हम न्यूज में पढ़ते हैं ना, शेयर मार्केट इज गोइंग अप, सेंसेक्स गोइंग अप, निफ्टी गोइंग डाउन. तो इससे क्या पता चलता है कि व्हेन द शेयर मार्केट इज गोइंग अप, दैट मींस देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु आर डिमांडिंग फॉर द शेयर्स. तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमी की हेल्थ इज गुड. And when the share market is going down, yeah, Sensex is going down, then we say कि economic health is not good. People are not buying, people are selling the securities, right? Pricing of securities. Securities का price set होता है in the stock exchange, and it is simple mechanism of demand and supply. जितनी ज्यादा डिमांड होगी, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल बी हाई. जितनी कम डिमांड होगी, ज्यादा सप्लाई होगी, people are selling more securities, then prices of the securities will be low. Safety of transactions. Secondary market ensures the safety of your transactions, of the security of the investors also. ठीक है, अब because stock exchange is actually regulated and controlled by the SEBI, तो इसीलिए Securities Exchange Board of India, हम आगे पढ़ेंगे स्लाइड में, तो ये इंश्योर करती है कि जो ट्रांजैक्शन है वो सेफ है, सिक्योर है, किसी के साथ, किसी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, कोई मिसहैंडलिंग नहीं हो रही है, राइट. इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू सिक्योरिटीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Whenever you want to convert your financial assets or securities into cash, you can easily do it by going to the secondary market and sell your securities. तो मार्केटेबिलिटी है, जब भी आपको बेचने का मन है आप बेच लो, जब भी आपको कैश में कन्वर्ट करने का मन है आप कैश में कन्वर्ट कर लो. It contributes to economic growth. सिक्योरिटी जो सेकेंडरी मार्केट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है. जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिल जाता है, वो तो लिक्विडिटी हो गई. लेकिन देयर इज अ होल लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, तो दे विल इन्वेस्ट इनटू द मनी. अब वो शेयर्स खरीदेंगे, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी. when the money will change hands from one person to other, maybe I need money for some purpose, right? So I will sell my securities to you and you have surplus money and which is not used anywhere. So अगर मैंने आपको शेयर्स बेच दिया, पैसा मेरे पास आ गया, तो I will use it somewhere, तो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, right? Spreading of equity cult, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. इक्विटी कल्ट. इक्विटी कल्ट का मतलब है to have the feeling of ownership. I want to be owner of some business concern. I cannot open my own concern. मेरे को business owner तो बनना है. I want to be owner. But मेरे को ना business करना है, ना मुझे business में कोई interest है, ना मेरे पास इतने funds हैं कि मैं business कर लूँ. Then what do? I can simply buy shares of some companies and be the owner, because we know shareholders are the owners of the company, right? तो जब ये इतना secondary market is flourishing, that means so many people are ready to buy these shares and it is spreading the equity cult कि अरे shares मैं भी खरीद सकती हूँ, secondary market बहुत easily available है, जब पैसे चाहिए होंगे जब मैं बेच दूंगी. ठीक है, तो क्या हो गया, इक्विटी कल्ट की फीलिंग स्प्रेड हो रही है कि अरे तुम शेयर होल्डर हो, I can also be shareholder by buying some shares in the market, right? So that is what is called कि you have the feeling of ownership, right?
नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपको अपने या कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खरीदनी है तो यू हैव टू सेव मनी एंड यू शुड हैव द फीलिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इट इनटू सम सिक्योरिटीज, राइट? सो दैट इज व्हाई जो सेकेंडरी मार्केट क्योंकि इतना इजीली अवेलेबल है, you can easily buy and sell securities and you can easily buy and sell financial assets, तो आपकी सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की हैबिट बढ़ती है कि यू वांट टू सेव मोर बिकॉज यू वांट टू बाय शेयर, तो आप सारा नहीं खर्चोगे एंड यू विल हैव द फीलिंग ऑफ सेविंग एंड धीरे धीरे इट विल बिकम योर हैबिट ऑफ सेविंग एंड देन यू विल इन्वेस्ट इट इन समथिंग। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं किसी कंपनी के, दैट मीन्स यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी समवेयर इनटू सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, right? Now there are certain important terms, children, that you all should know. They are generally the one markers. One is dematerialization. हमने कहा था, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था डीमैट अकाउंट खोलना है। Dematerialization मतलब all the physical securities must be converted into electronic form. ठीक है, अब आपको शेयर्स पेपर पे नहीं मिलते, पेपर के एक डॉक्यूमेंट की तरह नहीं मिलते हैं आपको शेयर्स, अब आपके एक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और वो अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट। तो यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी और अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और फिर जब आप शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं उस अकाउंट में वो शेयर्स प्लस या माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि डीमेटीरियलाइज करना है, मतलब हमें अगर हमारे पास कोई पुराने शेयर्स हैं विच आर स्टिल इन द पेपर फॉर्म, तो हमें उसको वी शुड कन्वर्ट इट इनटू अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड डीमेटीरियलाइजेशन। Next is demutualization. Demutualization means separation of ownership and control of stock exchange from the trading rights of the brokers. Brokers से stock exchange को separate करना। अब stock exchanges are there, they are अपने खुद के ओनर हैं, brokers उनके ओनर नहीं हैं। There was a time when stock exchanges were controlled and owned by the brokers. So now there is no ownership of brokers in any stock exchange. So that is called demutualization कि अब brokers का रोल लिमिट हो गया है, कंट्रोल्ड हो गया है। डिपॉजिटरी, अभी मैंने आपको बताया था डीमैट में कि हमें डिपॉजिटरी के साथ एक अकाउंट खोलना होता है विच इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट, राइट? तो डिपॉजिटरी इज काइंड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक बैंक की तरह है जिसके पास सारे जितने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में हैं। तो और हमें क्या करना होता है एज ए इन्वेस्टर, हमें अपना अकाउंट वहां खोलना होता है, ठीक है, और फिर जब जितने शेयर्स हम या कोई भी सिक्योरिटी हम खरीदते हैं वो हमारे अकाउंट में प्लस हो जाती है, जिसने बेचे होते हैं उसका भी अकाउंट होता है डिपॉजिटरी के पास, उसके अकाउंट में से वो माइनस होके खरीदने वाले के अकाउंट में प्लस हो जाती है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी। का एक फंक्शन क्या है, इट होल्ड्स ऑल द सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब डिपॉजिटरी अपने आप डायरेक्टली काम नहीं करती, देयर आर टू मेन डिपॉजिटरीज, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ठीक है, तो ये अपने आप डायरेक्टली नहीं काम करती है, दे हैव हायर्ड सम एजेंट फॉर देम एंड व्हिच इज कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एक्ट एज एन एजेंट फॉर द डिपॉजिटरीज who interacts with the investors and maintain their accounts. Clear है? Now we come to very important part of this chapter. Basically पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक और पार्ट जिसका 100% गारंटीड क्वेश्चन है, दैट इज सेबी। सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एपेक्स बॉडी है, रेगुलेटर है सिक्योरिटीज मार्केट का, ठीक है। So let us read about it. It was established in 1988 by Government of India to act as an apex body to administer and regulate the functions of securities market. SEBI promotes orderly and healthy development of stock exchange and it acts as a watchdog for the securities market. ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है या मनी मार्केट है, तो इन सारे मार्केट्स में एक कोई रेगुलेटर तो होना चाहिए ना, जो ये इंश्योर करे कि सारी चीजें बहुत स्मूथली चल रही हैं, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो सेबी वो काम करती है। सेबी जस्ट लाइक कहते हैं ना कि आरबीआई है फॉर बैंकिंग, इसी तरह से सेबी है फॉर फाइनेंशियल मार्केट, राइट? अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। देयर आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ सेबी: प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड रेगुलेटरी फंक्शंस, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या है, सेबी का क्या काम है,
अंडर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस इट चेक्स प्राइस रिगिंग कि अननेसेसरी प्राइस कम ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं, सडनली प्राइस कम या ज्यादा होते हैं कंपनीज के शेयर्स के या सिक्योरिटीज के, तो सेबी भी चेक करती है कि ये क्यों हो रहे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। बेसिकली प्रोटेक्टिव फंक्शंस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शंस है, जिसमें सबसे पहले प्राइस फिक्सिंग है। सेकेंड इज प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग जब जो कंपनीज के अंदर के जो लोग होते हैं उनके पास कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं टू आर्टिफिशियली इंक्रीज और डिक्रीज द शेयर प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज, तो उसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। या जब वो अंदर की किसी इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठा लेते हैं। सपोज मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि अभी डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो बहुत अर्निंग हो जाएगी, तो मैंने अपनी वाइफ के नाम पे बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए एकदम अचानक। कंपनी ने डिविडेंड इशू किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो डिविडेंड मुझे मिल गया। तो सेबी ये चेक करती है कि किसी डायरेक्टर ने, किसी मैनेजर ने कोई बहुत अमाउंट में शेयर्स सडनली तो नहीं खरीदे हैं। ठीक है, इट प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ऑफ कोर्स कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर फर्म में कोई बिजनेस ने करी है, कंपनीज ने करी है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, इट एजुकेट इन्वेस्टर्स एंड इट ऑल्सो चेक्स ऑन द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कि फर्म ने, बिजनेस ने या कंपनीज ने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो करा है वो एक्चुअली जेन्युइन तरीके से करा है या किसी को फेवर करने के लिए किया है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस अंडर द प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन इज डेवलपमेंटल फंक्शन। सेबी का काम सिर्फ प्रोटेक्ट करना ही नहीं है, सेबी का काम है शेयर मार्केट को या सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करना। अब वो कैसे होता है? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज, इंटरनेट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट भी सेबी अलाउ करती है कि इंटरनेट पे ट्रेड करो तो क्या होगा, ट्रेडिंग विल बी मोर, वॉल्यूम ऑफ द ट्रेडिंग विल बी मोर, तो इससे डेवलप होगा सिक्योरिटी मार्केट। पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन अगर इंपॉर्टेंट है वो पब्लिश करती है, जर्नल्स आते हैं सेबी के एनुअल, मंथली, और कोई आर्टिकल्स आते हैं सेबी की तरफ से कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सब is again the part of a development function and it made the underwriting optional. पहले underwriting of the shares was compulsory, अब सेबी ने क्या कहा है कि underwriting is optional। तो ये सेबी के डेवलपमेंटल फंक्शंस हैं। अब सेबी रेगुलेट भी करती है, रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करती है, किसके लिए? for the convenience of the both investors also and the firms also, जो कंपनीज शेयर इशू कर रही होती है वो भी। तो रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है सेबी के? फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड इंटरमीडियरीज। कोई भी ब्रोकर या इंटरमीडियरी अगर वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, इट कैन नॉट एक्ट एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये सब चेक सब मेंटेन करती है, लिस्ट ऑफ ऑल ब्रोकर्स एंड इंटरमीडियरीज, और उनको रेगुलेशंस उनके बाइंड, मतलब इट सीज दैट दे आर बाइंडिंग बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक मार्केट, राइट। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स। टेक ओवर बिड्स क्या होती है? व्हेन वन फर्म टेक्स ओवर द अदर फर्म। तो हम अगर एक फर्म को दूसरी फर्म को टेक ओवर करना है तो वो कैसे करती है? दूसरे फर्म के शेयर्स खरीद के। तो सेबी ये भी रेगुलेट करती है कि एक फर्म ने दूसरे फर्म के जो सिक्योरिटीज खरीदे हैं वो इनजेन्युइन तरीके से तो नहीं खरीदे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के साथ। तो इट ऑल्सो रेगुलेट्स दी टेक ओवर बिड्स एंड इट कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। हर स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट और उनकी इंक्वायरीज, उनके काम फंक्शनिंग के ऊपर चेक करना, ये भी सेबी का ही फंक्शन है। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ सेबी। बेसिकली सेबी के अगर आप ऑब्जेक्टिव देखो तो 3 है: टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स, टू डेवलप द स्टॉक मार्केट एंड टू रेगुलेट द इंटरमीडियरीज एंड द स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, तो आप इनको अगर इनकी हेडिंग देखो तो आप इनको ऑब्जेक्टिव्स की तरह लिख सकते हैं, अगर आप इनको डिटेल में पढ़ो तो एज अ फंक्शन आप पढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट सेबी चिल्ड्रन। With this, we have finished the revision of chapter 10. I hope I could make sense to you. You have understood and you have revised the main topics. Do supplement this revision series with your detailed series also, right? And if you have liked this video, please press like button. Where are you going? Don't go anywhere. I'm coming with next chapter. So subscribe my channel for next video.
In next video, we will revise chapter 11. So till then, take care. Goodbye.